Educating the mind without educating the heart is no education at all. Hello children, my name is Muhammadullah and I'm your English teacher. We're going through the second chapter, The Noblest Deed. In our previous video, we covered up the reading portion. So in today's video, we're going to learn the new and difficult word which is given in this chapter so that we may understand the chapter. So what are you waiting for? Let's get started. Here we go. Second chapter, The Noblest Deed. Once there was an old man who tested his sons by giving them a task of performing the noblest deed. Once there was an old man who tested his sons. एक ज़ईफ आदमी था जिसने अपने बेटों का एक टेस्ट लिया. कैसे? By giving them a task. उनको एक टास्क देकर. What kind of task? Task of performing the noblest deed. कि तुम में से सबसे बेहतरीन अमल कौन करता है? उनको एक टास्क दिया कि तुम में से कौन सबसे बेहतरीन अमल करता है. The son who performed the noblest deed was awarded a gold chain and a costly ring. तो जिसने सबसे बेहतरीन अमल किया उसको एक गोल्ड चेन और एक कीमती अंगूठी दी. Who was that son? Let's find out. In a small town named Nandgiri, there was an old man. एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम नंदगिरी था, एक ज़ईफ आदमी रहता था. There was an old man. He had 3 sons. उसके 3 बेटे थे. He had 3 sons. One day, एक दिन, he divided all his property among his sons. एक दिन उसने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के बीच बांट दी. Property. Divided means distributed. बांट दी. You know, divide. Property. Property means, let me write the meaning here. Property. Property means जायदाद. One day he divided all his property among his sons. तो एक दिन उसने अपनी तमाम जायदाद को अपने बेटों के बीच बांट दिया. But retained. See here, retained. But retained. Retained. But retained means अपने पास ही रख लिया. Means in English you can say keep. Retained means यहाँ पे समझ लीजिए. Retained अगर आपके पास कोई सामान है, आप किसी और को दे रहे हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ आप अपने पास रख लेंगे, जो उसको नहीं देंगे, that one is called retained. जो आप
नहीं देते हैं, जो अपने पास रख लेते हैं, उसको कहते हैं रिटेन्ड। सो हियर, बट ही रिटेन्ड अ गोल्ड चेन एंड अ कॉस्टली रिंग। वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ वो अपने बेटों के बीच बांट देता है, लेकिन वो एक गोल्ड चेन और एक कीमती अंगूठी अपने पास ही रख लेता है। रिटेन्ड, अपने पास रख लेता है। ही कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स कीमती या फिर महंगी। कीमती या फिर महंगी। बट ही रिटेन्ड अ गोल्ड चेन एंड अ कॉस्टली रिंग। तो वो अपने पास एक सोने की चेन और एक महंगी अंगूठी वो अपने पास ही रख लेता है। ही सेड टू हिज सन्स, उसने अपने बच्चों से कहा, आई गिव यू अ 3 months टाइम, मैं तुमको 3 महीने का वक्त देता हूं। आई गिव यू अ 3 months टाइम, मैं तुमको, तुम सबको 3 महीने का वक्त देता हूं। Whoever of you performs the noblest of deeds, whoever of you performs, तुम में से जो कोई भी अमल करेगा, the noblest of deeds, अजीम अमल, तुम में से जो कोई भी एक अजीम अमल को अंजाम देगा, will get this gold chain and this costly ring, तो वो उसको ये सोने की चेन और ये कीमती अंगूठी मिलेगी। किसको मिलेगी? द वन हु विल परफॉर्म द नोबलेस्ट ऑफ डीड्स। नोबलेस्ट ऑफ डीड्स, लेट मी राइट द मीनिंग हियर। नोबलेस्ट ऑफ डीड्स, noblest of deed, in Urdu we can write अजीम अमल। noblest of deed, अजीम अमल, बेहतरीन अमल, बहुत ही अच्छा काम। Whoever of you performs the noblest of deeds, तो तुम में से जो कोई भी सबसे अजीम अमल को अंजाम देगा, will get this gold chain and this costly ring, तो उसको ये सोने की चेन और ये कीमती अंगूठी मिलेगी। All the sons walked away, और फिर सभी बच्चे चले गए। After 3 months, आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद, all the 3 sons returned to the old man, तीनों बेटे, उसके तीनों बेटे उसके पास, उस ज़ईफ आदमी के पास वापस आते हैं। all the 3 sons, सभी तीनों बच्चे returned, वापस आते हैं, to the old man, ज़ईफ आदमी के पास वापस आते हैं। The old man asked the eldest son, तो जो ज़ईफ आदमी है वो अपने सबसे बड़े बेटे से पूछता है, Tell me, which good deed did you perform? बताओ मुझे तुमने कौन सा बेहतरीन अमल को अंजाम दिया। Perform, let me tell you, write the meaning, perform. I think the problem is with the black screen. Perform means अंजाम देना, करना। Simply we can say करना। Perform means करना, अंजाम देना। Tell me which good deed did you perform? तो बताओ मुझे तुमने कौन सा बेहतरीन अमल किया। Father,
सेड द एल्डेस्ट सन, तो बड़े बेटे ने कहा कि वालिद मोहतरम, पिताजी, वाइल ऑन माई जर्नी, जब मैं सफर में था, लेट मी राइट द मीनिंग, जर्नी, सफर, वाइल ऑन माई जर्नी, मेरे सफर के दौरान, आई फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड coins एंड rupees lying on the roadside. I found means FIND, find means पाना. While on my journey, जब मैं सफर में था, I found, it's the second form of find, तो मुझे मिला, क्या मिला? अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक बैग जो सोने से भरा हुआ था, एंड रुपीज, और पैसों से, लाइंग ऑन रोड साइड, जो रोड पर पड़ा हुआ था, लाइंग, LYING, लाइंग, पड़ा हुआ, which was while on my journey, जब मैं सफर में था, I found a bag full of gold coins and rupees, तो मुझे एक बैग मिलता है जो सोने के सिक्के और पैसों, रुपयों से भरा पड़ा था. lying on road side, जो रोड पर पड़ा हुआ था, lying, पड़ा हुआ, on road side, जो रोड के किनारे पड़ा हुआ था. I inquired about the bag, तो मैंने बैग के बारे में इंक्वायरी की, पूछताछ की, इंक्वायर्ड. इंक्वायर मीन्स पूछताछ करना, पूछताछ करना, पता लगाना, इंक्वायर. While on my journey, I found a bag full of gold coins and rupees lying on roadside. जब मैं सफर में था, तो मुझे एक सोने का बैग, मुझे एक बैग मिलता है जो सोने के सिक्के और रुपयों से भरा पड़ा था, जो रोड के किनारे पड़ा हुआ था. I inquired about the bag, तो मैंने बैग के बारे में पूछताछ की. Confirm the identity of its owner. Confirm the identity. Confirm means, you know that, identity. What he did? He confirmed the identity. Identity means पहचान. You also use identity of your school. Remember that? So identity means पहचान, the one which identify you. So I inquired about the bag. मैंने बैग के बारे में पूछताछ की. Confirm the identity of its owner. Owner means मालिक, the one who owns, मालिक, owner. I inquired about the bag. मैं बैग के बारे में पूछताछ करता हूँ. Confirm the identity of its owner, तो जो उसका ओनर था बैग का, उसके बारे में पूछताछ करके वो पता लगाता है, कंफर्म करता है कि इसका ओनर का कौन है. एंड रिटर्न द बैग टू इट्स ओनर, और बैग को जो उसका ओनर था, जिसका वो था, उसको वो वापस कर देता है. The old man admired the deed and his honesty. The old man admired.
admired, A D M I R E, admire. Admire means तारीफ करना. तारीफ करना, प्रशंसा करना in Hindi. So the old man admired the deed. तो ज़ईफ आदमी ने उसके जो अमल था उसकी तारीफ की. एंड हिज ऑनेस्टी, और उसकी ईमानदारी की. ऑनेस्टी, HO, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी. The old man admired the deed and his honesty. तो ज़ईफ आदमी ने उसके अमल की और उसकी ईमानदारी की तारीफ की. He asked the second son. अब वो दूसरे बेटे से पूछता है, What did you do which you can call a noble deed? तुमने क्या किया जिसको तुम कह सकते हो कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, तुमने ये अजीम अमल किया. The second son smiled and said. तो दूसरा बेटा वो मुस्कुराता है और कहता है, During the course of my journey, remember this phrase, during the course of my journey, during the course of my journey, मेरे सफर के दौरान, during the course of my journey, मेरे सफर के दौरान, while passing by a river, जब मैं एक रिवर के पास से गुजर रहा था. रिवर दरिया, जब मैं एक दरिया के पास से गुजर रहा था. I found a young boy drowning. तो मैं देखता हूं, मुझे मिलता है एक बच्चा, a young boy, एक कम उम्र का बच्चा, a young boy, एक नौजवान बच्चा मुझे मिलता है. कैसे मिलता है? ड्रोनिंग. ड्रोनिंग मीन्स डूब रहा था, डूबते हुए मिलता है. ड्रोनिंग. DROW, डूब रहा था. ड्रोनिंग. रिमेंबर, पानी में कोई चीज डूबे उसको हम बोलते हैं ड्रोनिंग. बट हियर नोटिस वन थिंग, देयर आर टू वर्ड्स. डूबने के लिए दो वर्ड हैं. वन इज ड्रोनिंग एंड द सेकेंड वन इज सिंक. इफ अ नॉन लिविंग थिंग, कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर पानी में डूबे तो उसको बोलते हैं सिंकिंग. अगर हम डूबने लगे तो वहां पर उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रोनिंग. रिमेंबर द डिफरेंस हियर. सिंक का मतलब भी वही है, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है. कोई भी आपका जैसे जहाज अगर डूब जाए तो वहां पर हम ड्रोनिंग यूज नहीं करेंगे जहाज के डूबने के लिए, बट वी हैव टू यूज दिस वर्ड सिंकिंग. आप डूब रहे होंगे, देन यू विल यूज दिस वर्ड ड्रोनिंग. कोई बच्चा डूब रहा है, वहां पे डूबने के लिए ड्रोनिंग यूज करेंगे. ऑलराइट. The second son smiled and said, During the course of my journey, मेरे सफर के दौरान, while passing by a river, एक दरिया के पास से गुजरते हुए, I found a young boy drowning. मैंने देखा कि एक नौजवान लड़का डूब रहा था. Though I myself am not perfect at swimming, हालांकि इसके बावजूद कि मैं स्विमिंग में परफेक्ट नहीं था, बहुत अच्छी स्विमिंग मुझे नहीं आती थी. However, इसके बावजूद I jumped into the river. मैंने छलांग लगा दी दरिया में, रिवर में मैंने छलांग लगा दी. And saved the boy's life. और उस बच्चे की जिंदगी को मैंने बचा लिया. The old man said, Your deed is worth praising.
तुम्हारा अमल तारीफ के काबिल है। वर्थ प्रेजिंग, तारीफ के लायक। Let me write the worth praising. Worth praising. तारीफ के लायक। Worth praising. तारीफ के लायक। The old man said, "Your deed is worth praising." तुम्हारा अमल तारीफ के लायक है। It is a noble deed indeed. ये वाकयातन, ये हकीकत में एक अच्छा अमल है। Indeed means सचमुच का। Next, the old man turned towards the third son and asked. The old man turned towards the third son and asked. अब ज़ईफ आदमी अपने तीसरे बच्चे की ओर मुखातिब होता है, उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है, What noble deed did you do, my son? तुमने क्या बेहतरीन अमल किया मेरे बच्चे? वो अपने तीसरे बच्चे से पूछता है कि तुमने क्या बेहतरीन अमल किया, तुमने कौन सा अजीम अमल किया? The youngest son said, तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है, सबसे छोटा बेटा, वो कहता है, During my course of stay at the town, अभी हमने पीछे पढ़ा था During my course of journey, यहाँ पर During my course of stay at the town, तो मेरे सफर के दौरान जब मैं शहर में रुका हुआ था, A person picked up a quail. You remember this phrase, picked up a quail. A person picked up a quail. एक किसी से, एक लड़के से, एक आदमी से picked up a quail. मेरी कोई एक पर्सन वो मुझसे लड़ाई कर लेता है। picked up a quail means लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है। with me, मुझसे। picked up a quail, झगड़ा हो जाता है विथ मी, मुझसे, एंड बिकेम माई एनिमी, और मेरा दुश्मन हो जाता है। वन नाइट ही केम टू किल मी, तो एक रात वो मेरे पास आता है मुझे मारने के लिए। टू किल मी वाइल आई वॉज अस्लीप, जबकि मैं सोया हुआ था। अस्लीप, सोया हुआ। Sleep means सोया हुआ। One night he came to kill me while I was asleep. तो एक रात वो मुझे मारने आता है जबकि मैं सोया हुआ था। कौन मारने आता है? The one who picked up a quarrel, जिसने लड़ाई कर ली थी, झगड़ा कर लिया था, जिससे बहस हुई थी। As he wanted to stab me, जैसे ही वो मुझे स्टैब करना चाहता है। स्टैब मीन्स किसी को चाकू या तलवार से घोंपना। स्टैब मीन्स घोंपना। एज ही वांटेड टू स्टैब मी, तो जैसे ही वो मुझे चाकू से घोंपना चाहता था, आई वोक अप, मैं उठ गया। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, तो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कॉट हिम रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़ लेना। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, तो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाउएवर, हालांकि, व्हेन ही बेग्ड पार्डन, जब उसने मुझसे माफी की इल्तिजा की। बेग्ड पार्डन, इल्तिजा की। However, when he begged pardon, जब उसने मुझसे माफी की इल्तिजा की, I forgave him, मैंने उसे माफ कर दिया। The old man said, amongst all of you, तुम सब में से, the youngest has performed the noblest of deeds, सबसे बेहतरीन अमल, सबसे अजीम अमल जो सबसे छोटा है उसने किया है।
because no other quality is as noble as to forgive, क्योंकि कोई भी अमल इससे बेहतरीन अमल नहीं है कि किसी को मुआफ कर देना। तो किसी को मुआफ कर देना ये सबसे बेहतरीन अमल होता है। द ओल्ड मैन गेव द रिंग एंड द गोल्ड चेन टू द यंगेस्ट सन। तो ज़ईफ आदमी ने अपनी जो गोल्ड चेन और रिंग थी वो अपने छोटे बच्चे को उसने दे दी। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।